Hello students, very good morning. Myself Praveen, and today I'm going to take a trigonometric function, inverse trigonometric function, second class. In the last class we have discussed all the formulas regarding this inverse trigonometric functions, and we have solved some problems regarding this topic. Today we'll continue with some more problems. Okay, the first example here, cos inverse of cos 7 pi by 6. We are finding the value of cos inverse cos 7 pi by 6. Here cos inverse and cos both are inverse functions, and they get cancelled only in their range. Cos inverse cos get cancelled only in the range of cos inverse. The range of here range of cos inverse x is 0 to pi, means 0 to 180 degree. But this 7 pi by 6, 7 pi by 6 is this angle pi by 6 mean 30 degree. 37 za 37 the 210. This angle is 210 degree. Then this 7 pi by 6 is not belong to 0 to pi. Then we can't cancel this cos inverse cos. ये cos इनवर्स cos दोनों कैंसिल नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो एंगल है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 होता है 210 डिग्री. 210 डिग्री दैट इज नॉट इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई. cos इनवर्स x का रेंज है 0 टू पाई. इस रेंज में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वो कैंसिल नहीं होता है. तो इसीलिए फर्स्ट वी आर चेंजिंग दिस 7 पाई बाई 6, वी आर reducing this 7 pi by 6 between 0 to pi. इसको चेंज करना है, cos इनवर्स के रेंज में लाना है. रेंज में लाने के बाद वो cos इनवर्स और cos कैंसिल होता है. So this 7 pi by 6 can be written as a pi plus pi by 6. पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, पाई यानी कि 180. 180 प्लस 30 कितना होता है? 210. यानी कि हम इसको स्प्लिट कर सकते पाई माइनस पाई बाई 6. सो दिस बिकम cos cos इनवर्स cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6. cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6 क्या लिख रहे हैं हम लोग? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख रहे हैं. The next cos 180 plus theta, that is cos inverse cos 180 plus theta is cos theta. 180 और 360 में क्या होता है? cos का आंसर cos ही होता है. in allied angle, in case of 180 plus or minus and 360 plus or minus, what happened? The resulting is cos only. The trigonometric function will not change. Cos resulting cos. But 7 pi by 6 mean 210 degree. The 210 degree, it is lies in the third quadrant. In third quadrant, tan and cot values are positive, but this is cos. Cos value is negative. We will get cos 180 plus theta is minus cos theta. Why this minus? Because the angle is in second, not third quadrant. वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो फिर cos इनवर्स के अंदर ये माइनस वैल्यू आया. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस माइनस. cos इनवर्स ऑफ माइनस है तो cos इनवर्स cos कैंसिल नहीं होता. वी हैव टू रिमूव दैट माइनस. इन केस ऑफ cos इनवर्स माइनस x, on removing minus it become pi minus cos inverse x. So this is nothing but pi minus cos inverse of cos pi by 6. यानी कि यहाँ से माइनस निकल गया. दिस बिकम पाई माइनस. नाउ cos inverse cos cancel, remaining is pi minus pi by 6, and this value is equal to 5 pi by 6. 6 into pi, 6 pi. 6 pi minus pi is a 5 pi by 6. The second option is correct.
ये जो पाई बाई सिक्स है, ये जो पाई बाई सिक्स अभी आया कॉस के अंदर, वो पाई बाई सिक्स ये 0 to पाई के रेंज में है, तो फिर कॉस इनवर्स कॉस कैंसल्स, रिमेनिंग इज पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, okay. Sine inverse, sine of pi by 3 minus sine inverse minus 1 by 2. We are finding the value of this sine of pi by 3 minus sine inverse of minus 1 by 2. Okay, so sine of pi by 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2. देखिए साइन इनवर्स के अंदर माइनस सिंबल है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स. फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस माइनस सिंबल. जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो माइनस होता है उसको रिमूव करना है. रिमूव कैसे करेंगे, यूजिंग साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. ऑलरेडी साइन इनवर्स के बाहर माइनस है, तो दिस माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2. साइन का वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आएगा, 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज 1/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है पाई बाई 6. 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6. तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू इज पाई बाई 6. साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, पाई बाई 6 यानी कि ये 30 डिग्री. 60 प्लस 30 कितना होता है जी, 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1. सो इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 1. देन द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके, we'll move to the next problem. Next problem, that is tan inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3. Tan inverse root 3 is positive, but here cot inverse of minus root 3 is not minus, sorry, root 3 is not plus. We are making this minus root 3 as a plus root 3. We are applying cot inverse minus x formula. tan inverse root 3 इसमें जो root 3 वो प्लस है, लेकिन cot inverse में जो root 3 है वो माइनस में है, तो उस माइनस को पहले हमको निकालना पड़ेगा. तो cot inverse of, इसमें cot inverse of माइनस x का फॉर्मूला है पाई माइनस cot inverse x. We are applying that formula. So this become tan inverse of root 3 माइनस, ये माइनस से रूट 3 से माइनस निकालने से क्या होगा, दैट बिकम पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3. अब बताइए tan का वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे आएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, यानी कि ये पाई बाई 6, पाई बाई 3, दिस इज पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, माइनस माइनस इंटू पाई माइनस पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3. कॉट का वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री. कॉट 30 डिग्री इज रूट 3. 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 6. एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम होगा 6, 3 2 ज़ा 1 6 ज़ा 6 1 ज़ा, यानी कि ये होगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस 1 पाई. 2 पाई प्लस पाई 3 पाई होगा, 3 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे, वी गेट माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 6. अगेन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कट हो जाएगा, वी विल गेट माइनस पाई बाई 2. देन इट्स वैल्यू इज माइनस पाई बाई 2. Understood? So here
the value of tan inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3 value is minus pi by 2. Let us move to the next problem. Okay. Sine of here sine of tan inverse x, it is equals to, तो वी नो ऑलरेडी साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, यानी कि साइन के साथ में साइन इनवर्स है तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होते हैं, कॉस के साथ कॉस इनवर्स है तो कैंसिल होता है, टैन के साथ टैन इनवर्स है तो कैंसिल होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कैसा है, इधर साइन के साथ टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स x है, तो साइन और टैन इनवर्स कैंसिल नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द टैन इनवर्स x एज अ साइन इनवर्स x। कैसे चेंज करना है, तो देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वी आर ड्रॉइंग ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ए बी और ये सी, और यहाँ पे जो एंगल सी है हम लोग इसको x मान लेंगे हम लोग, दैट इज एंगल ई एक्स। यहाँ पे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी, tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग c लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan c, x इक्वल टू क्या होगा, tan c। x यानी कि x बाई वन यानी कि अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इस ट्रायंगल का अपोजिट साइड है x और एडजेसेंट साइड है 1, तो using Pythagoras theorem we will get this hypotenuse side is 1 plus x square. Pythagoras theorem AC square equal to AB square plus BC square, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस कितना मिलता है हमको, AC is equal to अंडर रूट 1 plus x square मिलता है। तो फिर इस tan c को अगर हम लोग sin c में कन्वर्ट करेंगे, tan c को sin c में कन्वर्ट करेंगे तो sin c क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी कि वो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और ये c इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स। साइन को अगर हम लोग RHS में लेते हैं, साइन को RHS में लेंगे तो वो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इस टैन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, तो अभी ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन हियर, साइन ऑफ टैन इनवर्स x है, तो हम वो टैन इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, रिमेनिंग x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डायरेक्टली कैंसिल करना है तो साइन साइन इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स, टेन टैन इनवर्स ऐसे कैंसिल होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में different trigonometric function with different inverse trigonometric function is given. So first we are making the trigonometric function and inverse trigonometric function is same, then we are solving this problem. So we considered inverse trigonometric function, that is tan inverse x equal to c. Lastly we have changed c is equal to sin inverse because the question is sin. साइन है तो उसको हम साइन इनवर्स में चेंज करें, कॉस है तो कॉस इनवर्स में चेंज करना, टैन है तो टैन इनवर्स में चेंज करना है, देन वी कैन कैंसिल। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। tan inverse 1 by 5, no, 4 tan inverse of 1 by 5 minus tan inverse 1 divided by 239 is equal to, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, 4 tan inverse 1 by 5, तो ये जो 4 tan inverse 1 by 5 I am considering this separately because this is not in simple,
वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू सिंपल, यहाँ की इंटू 4 है, इंटू 4 है तो यहाँ से 4 मैं निकाल रहा हूँ, सिंपल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 फॉर्म में लिख रहा है इसको, एंड आई एम अप्लाइंग 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वेयर, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय है डिवाइडेड बाई है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नहीं है, वो फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ x की जगह लेना है 1/5, सो दिस बिकम 2 इंटू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 इंटू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/5 का स्क्वेयर होता है 1/25। Let us solve this. This become 2 into tan inverse that is 2/5 divided by 25 1 the 25 minus 1 that is 24/25. This is equals to 2 into tan इनवर्स ये होगा 2/5, ये 24/25 का रेसिप्रोकल होगा 25/24। दिस इज अगेन इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 1 2 12 कटेगा और 5 1 5 5 यानी कि 5/12 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12। Once again I am applying the formula, देखिए 4 था पहले, अभी 2 में कन्वर्ट हुआ, ये 2 है, फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 2 चला जाएगा। Once again we are applying the 2 tan inverse x formula, this become tan inverse 2 into x से 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर इज 144। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 1 ये 2 12 2 6 12 कटेगा यानी कि 5/6 आएगा वो, और डिवाइडेड बाय 141 144 144 माइनस 25, 144 में 125 माइनस करेंगे तो ये होगा 119 होगा, दैट इज 119 डिवाइडेड बाय 144, taking reciprocal that become tan inverse 5/6 into 144 divided by 119। यहाँ 6 1 6 2 12 6 4 24 6 4 24, तो इसका वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ 24 5 120 डिवाइडेड बाय 119 आएगा। अब ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ गया, ठीक है ना। सो नाउ द फर्स्ट टर्म इज tan इनवर्स 120/119 और दूसरा टर्म है tan इनवर्स 239। इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, हियर tan इनवर्स ये फर्स्ट टर्म कितना हुआ जी, 120 डिवाइडेड बाय 119 माइनस दूसरा है tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 239, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे, दिस बिकम tan इनवर्स ऑफ x कितना है 120 डिवाइडेड बाय 119 होगा, माइनस y कितना है 1 डिवाइडेड बाय 239 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
120 divided by 119 into 1 divided by 239. तो इसका एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम होगा 119 इंटू 239, और इसका न्यूमरेटर देखिए, इसका न्यूमरेटर आएगा 120 इंटू 239, 239 इंटू 120, 12 9 108 और 12 3 36 46 और 12 2 24 24 28, ये होगा 28680 tan इनवर्स, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये होगा tan इनवर्स कितना हो रहा है जी, वो 28680 माइनस ये 119 वन जा 119 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम होगा 119, इसका भी एलसीएम आएगा, इसका भी एलसीएम होगा 119 इंटू 239, और ये इधर इंटू होने से 28 नहीं एज इट इज लिखेंगे 239 इंटू 119, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 28441, इसको इंटू करने से 28441 आएगा, कितना आएगा 28441 माइनस ये 1 होगा, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ये दोनों एलसीएम कट जाएंगे 119 इंटू 239, और न्यूमरेटर में देखिए 28680 में अगर हम लोग 119 को माइनस करेंगे तो 10 में 9 माइनस करने से 1, 7 में माइनस 1 करने से 6, और ये 6 माइनस 1 होगा 5, 28561 होगा, 28561 डिवाइडेड बाय, अगर ये 28441 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये होगा 28440, प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस 120 है, 120 प्लस 120 है, सॉरी ये ओके वो दोनों प्लस करना है, प्लस माइनस नहीं प्लस करना है, 28441 में अगर हम लोग 120 को अगर प्लस करेंगे तो ये 1, ये 6, ये 5, 28561 होगा, ये 28561 डिवाइडेड बाय 28561 दोनों कट जाएंगे, दैट बिकम tan इनवर्स ऑफ 1, tan का वैल्यू 1 कब आएगा π/4 पे, इसका आंसर होगा π/4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स tan इनवर्स है, 4 टाइम्स को 2 टाइम्स में कन्वर्ट कर दिए, फिर 2 टाइम्स को 1 टाइम में कन्वर्ट करिए, आफ्टर दैट वी अप्लाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूला, तो लास्टली वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू इज π/4, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट, the algebraic expression for sin of cot inverse x, sin of cot inverse x, अभी हम लोगों ने sin of tan inverse x देखा, sin of tan inverse x, ये है sin of cot inverse x, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, सिमिलर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा दैट वी आर फाइंडिंग। Here we know that 1 minus cos alpha and 1 plus cos alpha value.
1 माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, और 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, देन दिस बिकम tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट व्हाट इज 1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर होगा tan स्क्वायर, दैट बिकम tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan square alpha by 2. Square root and square cancel. Remaining is tan inverse of tan alpha by 2. tan inverse tan cancel. इसका आंसर आएगा अल्फा बाई 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका वैल्यू अल्फा बाई 2। अंडरस्टूड? ओके, we'll move to the next problem, that is cot of tan inverse A plus cot inverse A. We know a identity that tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2। हमको ये आइडेंटिटी पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडेंटिटी है ये, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि अगर ये दोनों एंगल x x है तो इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। देखिए यहाँ a और a दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। सो दैट बिकम कॉट ऑफ पाई बाई 2, कॉट 90 डिग्री, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, कॉट 90 का वैल्यू है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, जीरो है, tan 0 0 है तो कॉट 90 जीरो होता है, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, cos inverse of 1 minus x divided by 1 plus x। ब्लू है, ओके, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम आया था अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये वही फॉर्म में है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस सी एक्स। अगर x की जगह कॉस थीटा पुट कर लेते हैं हम लोग, x की जगह कॉस थीटा पुट कर लेते हैं तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, एंड वी नो दैट फार्मूला, उसका फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, पुट x is equal to cos theta and 1 minus cos inverse कैंसिल नहीं होता है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स से, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस, इसको रूट एक्स होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स, एक्स को हम क्या लिखेंगे रूट एक्स होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला है दैट इज ओके, इसका एक फॉर्मूला है दैट इज 1 माइनस 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला है। सो this is in the form of cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, so this become 2 tan
tan इनवर्स x, x की जगह रूट x है, तो यूजिंग दिस फार्मूला दिस बिकम 2 tan इनवर्स ऑफ रूट x, 2 tan इनवर्स ऑफ रूट x, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंडरस्टूड? वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह है रूट x, तो इसमें पुट करेंगे x की जगह रूट x, दैट बिकम 2 tan इनवर्स रूट x। इस क्वेश्चन से ध्यान से देखिए, साइन के अंदर कॉट इनवर्स है, कॉट के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर टैन इनवर्स है, तो इनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव टू remove one by one all the trigonometric and inverse trigonometric functions. Lastly we'll get to an expression, so that expression we are finding. Okay, तो सबसे अंदर है ये cos of tan inverse x. Let us consider that cos of tan inverse x, इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू a, ठीक है, cos of tan inverse x, cos of tan इनवर्स x लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। tan इनवर्स और cos दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो tan इनवर्स को cos में चेंज करना पड़ेगा। सो ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। tan का मतलब होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, इसका हाइपोटेनस होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर इस tan इनवर्स को अगर हम लोग cos इनवर्स में चेंज करते हैं, so this become tan inverse x is equal to cos inverse। tan का रेशो क्या होता है? tan का रेशो अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, लेकिन cos का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो दिस बिकम cos ऑफ cos इनवर्स कितना है जी? वो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस cos इनवर्स कैंसिल, यानी कि ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू हुआ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से हम लेते हैं साइन ऑफ कॉट इनवर्स, ये जो सर्कल किया मैंने उसका वैल्यू कितना आया? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से ये जो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसको इसके लिए फिर सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। कॉट का जो रेशियो होता है वो होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट, कॉट का रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, इसको स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, वो होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर ये अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कॉट इनवर्स को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पुट करेंगे, दिस बिकम साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन दिस साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसल, रिमेनिंग इज आवर आंसर। अपना आंसर है यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कहाँ ये ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन में है, दोनों का रूट एक ही लिया गया है, होल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, okay students, we will stop here, we'll continue in the next class. Thank you students.